स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानियों सोलो। इससे पहले कि हम आज के दैनिक समाचार अपडेट में शामिल हों, हम सबसे पहले हमारे कोरेस्पोंडेंट मेघालय से उनके साथ लाइव फोनों पर बातचीत करेंगे ताकि वहां के लोकसभा चुनाव परिदृश्य और आप तक की राजनीतिक गतिशीलता के बारे में उन जानकारी ले सके। अभी स्टूडियो से जुड़ेंगे, हमारे स्टूडियो से जुड़ने वाले हैं हमारे साथ कॉर्नेलियस लल्लू। कॉर्नेलियस, Cornelius, can you hear me? Yes, I can hear you. Cornelius, hello. Yes. Yeah, so before we get into the details, can you first give us some latest updates on the political scenario regarding the ongoing Lok Sabha election preparations? The campaigns are also in full swing. What are your aspects in this? So as of now in Meghalaya, there is two seats. That is Shillong parliamentary seat and one is Garo parliamentary seat. So from Shillong parliamentary seats, there are 6 candidates. One is an NPP candidate, that is Dr. Amprin Lindo. Then RDA candidate is Robert Jun Kharjirin. Then Congress candidate is Vincent Pala. He is the sitting MP from Shillong parliamentary seat. Then from BPP party is Ricky AJ Singkon. And 2 independent candidates, that is Lakon Kema and Peter Shalam. As of now in Shillong parliamentary seat, the situation is, as per the public's opinion, it is a triangular fight. The fight is between the BPP, Congress and NPP. Why I say so? Because the situation here, because though BPP party is a regional party, she is the new launched party in Meghalaya, but still she got a lot of response from the public in Meghalaya. So when we are talking about Congress party we cannot underestimate because she already having her own vote bank in Meghalaya. So NPP is the ruling government. So as of now in Shillong parliamentary seat, the fight is between 3 candidates. That is BPP, NPP and Congress party. And we cannot predict who candidate will win in this Lok Sabha election. So when we are talking about Garo Hills, in Garo Hills there are 3 candidates. That is Zenith Zangma, he is contesting from the TMC party. Then Agatha Sangma, she is from NPP party. And from Congress is Saleng A. Sangma. The decision in Garo Hill also we cannot predict. And as of now, the hope goes to NPP party. That's all. Okay, Cornelius, coming to the seat sharing from Shillong, NPP has selected Amparin Lingdo. Who has had a strong hold winning assembly seats so far? Will she see the same support for the Lok Sabha like the assembly polls? Because as of now, for Dr. Amprin Lindo, there is a chance for her also to win. Because, we might say in Shillong, in Meghalaya, since 1972, when the Meghalaya has got the statehood, then the representative from Shillong province is only men. But now this is the time, and people expected that they will give chance for the women. So Dr. Amprin, she got a lot of chance to win in this election. And also she is the eligible candidate. Because being the politician, she has been experienced many years in our state. But now she has the capacity to contest, and if she win also, she is the eligible candidate who can fight for the right of the people in Meghalaya. Okay, now tell us what the views of the public is and where is the wave likely to be stronger? Which party has a stronger wave so far? So far, the stronger wave, that's why I'm telling you only 3 parties, because we cannot predict. As of now, it's only NDP, BTP and Congress party. Okay, Cornelius, what do you believe is, or let's just say, what will be the core reason for the issue among the voters this time? Is it the inflation, unemployment, or some other issues which will impact the voting?
As of now in Meghalaya, the main issue is demanding for implementation of ILP, inner line permit. And then second, to include Khasi and Garo language in the age schedule. That is the main issue. That is the burning issue that the people wanted to see the light of the day in Meghalaya. A part of that employment also is needed for the youth of Meghalaya. All right, Cornelius, that's all for now. Thank you for joining us. There was our correspondent from Meghalaya giving us the details about the Lok Sabha preparations and political dynamics of Meghalaya. अभी हम दूसरे समाचार पर जाएंगे। रायगढ़ में पुलिस ने रेवल स्टेशन के पास गांजा बेच रहे 2 संदिग्धों को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में पुलिस लगातार कार्रवाई कराते हुए अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 11 अप्रैल को गश्त के दौरान इंस्पेक्टर सुखंदर पटेल को सूचना मिली कि रेवल स्टेशन पार्सल कार्यालय के बाहर 2 संदिग्ध व्यक्ति गांजा बेच रहे थे। सहायक यूपी निरीक्षक योगेश्वर यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के सहायता से मध्य प्रदेश के दामों के हाकम सिंह लोरी और खुमन सिंह लोरी के रूप में पहचान गए संदिग्धों को मालदाका रोड पर हिरासत में लिया गया। गहन तलाशी में मारिजुआना के 7 और 12 पैकेट जब्त किए गए। संदिग्धों ने ओडिशा से मारिजुआना परिवहन कराने की बात स्वीकार की। लगभग 14.738 किलोग्राम मारिजुआना और 2 मोबाइल फोन के साथ 1,71,000 रुपये जब्त किया गया। संदिग्धों के खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के द्वारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया। माननीय पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल जी के निर्देश पर कोतवाली की एक गांजे के प्रति कार्रवाई जो हुई है उसके अंतर्गत 11 अप्रैल 2024 की शाम को पुलिस को मुखबिर से सूचना के पश्चात पुलिस को पता चला कि 2 संदिग्ध व्यक्ति अपने साथ में प्लास्टिक की पन्नियों में गांजा रखकर पार्सल ऑफिस के सामने मालदाका रोड पर एक ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। तो इस संदिग्ध सूचना को टैली करते हुए कोतवाली पुलिस ने आरपीएफ की टीम के साथ में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों एग्जैक्ट पोजीशन पर पाया। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करने के पश्चात उन्होंने अपना नाम हाकम सिंह लोधी और खुमान सिंह लोधी बताया, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के निवास करने वाले व्यक्ति हैं। के पास में उक्त की जांच करने के दौरान प्लास्टिक की पन्नियों में एक के पास में 7 पन्नियाँ और एक के पास में 12 पन्नियाँ में गांजा होना पुलिस को मिला और विधिवत तलाशी पंचनामा करने के बाद में और पूरे माल जो कि इनके पास में बरामद हुआ गांजा उसको तोड़ने के पश्चात कुल इसका वजन 14 किलो 738 ग्राम वहाँ पर पाया गया और उसके पश्चात उन्हें थाना लाकर विधिवत पूछताछ करने के पश्चात हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने कुल माल जो कि उनके पास से बरामद हुआ उसकी गणना की, जिसमें यह जुमला 1,71,000 रुपये तोड़ने के पश्चात हमने पाया और साथ में इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, एक आईटेल और दूसरा रेडमी, जिनकी कीमत 15,000 रुपये पाया गया। ओवरऑल जो की गई सामग्री की कुल कीमत 1,86,000 रुपये है और पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने यह गांजा संबलपुर उड़ीसा से खरीदा था और इसे बेचने के लिए ये ग्राहक की तलाश कर रहे थे और रायगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास पुलिस की कार्रवाई के दौरान जब ये पकड़ाए तो उनकी जो ये प्लान था ये विफल हो गया और आने वाले समय में पुलिस इसका ट्रेल करेगी कि किस तरीके से यह जो सामान है वहाँ से बेचा जा रहा है और रायगढ़ में या फिर दूसरे शहरों में कहाँ ले जाया जा रहा है। और धन्यवाद। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा प्रत्याशी विजय बाघेल ने आज अपना नामांकन दुर्ग कलेक्ट्रेट में भरा। इस दौरान विजय बाघेल अपना सैकड़ों समर्थकों के साथ आकर नामांकन पत्र दाखिल करते हुए मीडिया से की मुद्दों को लेकर बातचीत। आइए देखते हैं।
भैया आज नामांकन दाखिल करने आए हैं और आपने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या माहौल दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? और आज सीएम साहब भी आ रहे हैं, ऊर्जावान है और हम लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ अभी हमारा पहला सेट डाले हैं, जिसके मेरे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हैं और दूसरा सेट हम डालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, क्या उनका निर्देश होता है उसके अनुसार हमारा दूसरा सेट डलेगा, जिसके प्रस्तावक भाई RS बारले जी हैं जो पद्मश्री हैं। बाकी सेट और बाद में हम डालेंगे, जो भी हमारे प्रस्तावक होंगे वो डालेंगे। आज मानस भवन एक बड़ा कार्यक्रम भी आप लोगों ने आयोजित किया, आम सभा है, जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं, हर विधानसभा से आ रहे हैं और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, वो रायपुर से निकल चुके हैं, उसकी प्रतीक्षा है। फिर एक जंगी जो नामांकन रैली है उसके साथ हम एक आगाज इस चुनाव का फिर से एक बार करेंगे। शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता जी, ये परंपरा है, लोगों का जोश है, खरोश है और इसे शक्ति प्रदर्शन ना कहा जाए। शक्ति तो दिखेगी जब मतदान केंद्र में लोग जाएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ कमल छाप में बटन दबाकर फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। साहू समाज का जो वोटर है वो आपके पक्ष में कितना रुझान रखता है? लगता है कि साहू समाज के प्रत्याशी भाई दीपक साहू जी हैं हमारे साथ, विजय साहू जी हैं, बहन तुलसी जी हैं, सारे हमारे जो और साहू समाज के, और साहू समाज की भावना जब से माननीय ताराचंद साहू जी यहाँ थे और ताराचंद साहू जी ने जो अलग जगाया और इस कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त करने वाले माननीय ताराचंद साहू जी थे। आज उन्हीं के हम लोग शिष्य के रूप में आज उस परंपरा का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। मुझे एक बेटे की तरह वो प्रेम करते थे, स्नेह देते थे। आज वही भाव आज भी साहू समाज के लोगों का मेरे प्रति बना हुआ है। मैं भी अपने समाज का मुखिया हूँ, अध्यक्ष हूँ। माननीय ताराचंद साहू जी भी साहू समाज के संरक्षक के रूप में हमेशा काम किए और कभी भी समाज और राजनीति में कंट्रोवर्सी उन्होंने नहीं लाई। ये मूल स्वभाव साहू समाज का है और साहू समाज भी पूरे देशभक्ति के साथ राष्ट्रहित को ही मेन अपना उद्देश्य मानकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा रही है, ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ये देश सुरक्षित रहे। अब जीत का समय बहुत कम है, जीत का क्या डिफरेंस रहेगा पिछले बार की तुलना में? ये तो जनता जनार्दन के ही श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं, हमारे जाबाज कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों के श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं। इस बार 6 लाख से पार। थैंक यू। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू यादव ने भाजपा पर अपना संभावित नुकसान के बारे में चिंतित होने और लोगों का मनोबल गिराने के लिए 400 पार नारा का इस्तेमाल कराने का आरोप लगाया। उन्होंने संविधान बदलने की भाजपा की बात के प्रति चेतावनी देते हुए कहा कि संविधान का मसौदा डॉक्टर भीम अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था और ऐसा किसी भी प्रयास को हंसी पर रहने वाले समुदायों के कड़ी विरोध का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यादव ने बीजेपी पर देश में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कराने का आरोप लगाया। और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना।
और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को खत्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी, बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए, बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी और देश की जनता ने, दलितों ने इस बात को पूरा उनके इरादे को नस्ताबूद किया। वही हार इनका होने वाला है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार का विरोध कराने वाले एक महत्वपूर्ण चुनाव पूर्व गठबंधन इंडिया ब्लॉक मणिपुर ने राज्य की अपनी पिछली यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा कराने में विफल रहने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे के मनोरंजन ने हाल की हिंसा के कारण राज्य के मौजूदा दहशत पर प्रकाश डाला और शाह की अधूरी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त गठबंधन के संयोजक क्षेत्रीय मायू संता ने रिश्वतखोरी या अनेकता प्रथान का सहारा लिए बिना निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया। Your name, please, now. My name is Kangjam Manoranjan Singh. And your designation? State Secretary, RSP, Revolutionary Socialist Party. The last year, when this violence erupted in Manipur, is reached to in worst stage. He came to Manipur and promised that within the 10 days he will be back and solve this violence. But he is now ready to come to Manipur for election campaigning. Why so late? After he promised us that within 10 or 15 days he will be back to Manipur. But how long? 11 months is already gone. Nothing is solved. Now you know that day before yesterday, new violences came out, and for these reasons, all the peoples are panics in these critical junctures of the election. So that we speculate that if he came and he spread some negative sense to the peoples will be fight again, and the common polarization will be increased. This is our speculation to him. Any appeal for the people of Manipur? Yeah, we need to careful for his visits, and we remains is harmonically stands among us, and no rumors spread against among the parties or among the candidate. We are same people, same citizens, so we need to protect us from these rumors or worse propaganda. Do you believe if instead of Union Home Minister Amit Shah, the Prime Minister himself visited the state? Nothing will be proud by them, because their ideologies is very polarization in the community, so that we don't believe them. Even all the world's leaders also know that
they are the only working for the privileges of the citizens among the caste, creed, and others, so that they are very moisturized among the Indian citizens. About the chances of India Bloc candidate, both in inner and outer Manipur parliamentary constituency, what is your observation so far? How is the response from the people? They are well learned. They are very rational. Their rationality, even today I observe, they are very common to the what we are expected. अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।